बायोबियम। आओ समझे दुनिया को। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। वेलकम टू बायोबियम ऑनलाइन साइंस क्लासेस। Let's start now. Nutrition in animals. Okay. We know that in higher animals, nutrition is of holozoic type. Holozoic type का nutrition होता है. Holozoic that means complex food इसमें लिया जाता है. Okay. On the basis of feeding habit, animals are divided into various types. Feeding habit यानी खाने का तरीका. खाने के तरीके पे एनिमल्स को हम लोग अलग अलग पार्ट में अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. The first one that is called herbivores. Herbivores are the animals that depend on plant products for their food. Okay. Second one that is carnivores. Carnivores are the group of animals that depend on the flesh of other animals. They hunt the animals and eat the flesh of other animals. They are called as carnivores. Third category is the omnivores. Omnivores are the animals that can eat either plant or animal, both the products they can eat. That's why they are called as omnivore. Omni means all, vores means खाने वाला. Understand ना? एनिमल्स में हमने पढ़ा था होलोजोइक न्यूट्रिशन, अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन. होलोजोइक न्यूट्रिशन एक ऐसा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड इज टेकन, जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड लिया जाता है. And this complex food is to be broken down into simpler components or simpler substances. इस complex food को simpler substances या फिर simpler component में break किया जाता है. Then the food is absorbed by the organism or by the animals. अब इस food को absorb किया जाता है. That's why holozoic nutrition consists of so many sub processes. Okay, and it consists of 5 processes. First, number 1, that is called ingestion. Ingestion is the process of taking food inside the body of the animal. एनिमल के बॉडी के अंदर फूड को लेना प्रोसेस कहलाता है इंजेशन. Okay, it can be taken by our mouth. It can be taken by the simple cell membrane in single celled organism. Higher animals में हम लोग माउथ के थ्रू फूड लेते हैं, इंजेशन करते हैं, लेकिन वन सेल्ड और सिंगल सेल्ड एनिमल्स अपने सेल मेम्ब्रेन के फोल्डिंग्स के थ्रू ये लोग अपने फूड को लेते हैं inside their cell. That is called ingestion. Second process is called as digestion. Digestion is the process of breaking down of complex food into simpler substances. जैसा कि हम जानते हैं, हमने जो फूड लिया वो कॉम्प्लेक्स है, यानी बड़े बड़े कंपाउंड्स के फॉर्म में है, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स. अब इसे हमें क्या करना होगा, स्मॉलर सब्सटेंसेस में ब्रेक करना होगा, सिंपलर यूनिट्स में. फॉर एग्जांपल, कार्बोहाइड्रेट्स इज टू बी ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज, प्रोटीन इज टू बी ब्रोकन डाउन इनटू अमीनो एसिड, and fats are broken down into fatty acid and glycerol. Okay, this process is called as digestion. Understand? Next one, that is called absorption. Whenever the digestion is completed, जब digestion का process complete हो जाता है, that means क्या, हमारे पास क्या आ गया,
डाइजेशन के बाद हमारे पास आ गया ग्लूकोज, हमारे पास आ गया फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल फैट्स का, प्रोटीन्स का आ गया अमीनो एसिड. It is so small, they are so small, and it can be now passed inside the blood in higher organisms, higher animals, and in single celled organism it passes to the general body fluid, that is cytoplasm. Okay, एक सेल वाले एनिमल में ये फूड एब्जॉर्ब होकर साइटोप्लाज्म में जाएगा, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स और हायर ऑर्गेनिजम्स में ये फूड अपने लिक्विड जनरल बॉडी लिक्विड में जाएगा, जैसे हमारे अंदर ब्लड होता है. ठीक है, जिनके अंदर ब्लड नहीं होगा तो कोई भी और उनके बॉडी में लिक्विड होगा, उस लिक्विड में ये फूड पास ऑन होगा. दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. आवर फोर्थ process for the holozoic nutrition is the assimilation. Assimilation means when the smaller food are taken inside the cell, these smaller food are oxidized with the help of oxygen and broken down to release energy. It can be broken down to release energy either in the presence of oxygen or in the absence of oxygen. This is called assimilation, that means utilization of that food by the living organisms. Next one, that is called, and this is the last step of the holozoic nutrition, that is called egestion. Egestion is the process of the removal of undigested as well as unabsorbed food from the body. इसका मतलब है इजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग वेस्ट जो बच गया हमारे बॉडी में डाइजेशन के बाद, यानी कुछ फूड जो अनडाइजेस्टेड रह गए और कुछ फूड जो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं किया. ओके, ऐसे फूड जो हैं वो हमारे लिए वेस्ट मटेरियल्स बन जाते हैं, एंड वी हैव टू रिमूव देम फ्रॉम आवर बॉडी, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन. नाउ न्यूट्रिशन इन सिंगल सेल्ड एनिमल. मोस्ट कॉमन हम लोग सिंगल सेल्ड एनिमल का एग्जाम्पल में देखते हैं, दैट इज अमीबा. ओके, अमीबा में जो न्यूट्रिशन प्रोसेस होता है जस्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग, यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, बट वो सिंगल सेल्ड है तो सिंगल सेल की तरह होगा. वी आर मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, तो हम में थोड़ा सा डिफरेंट होगा, थोड़ा सा अलग वे में होगा, लेकिन प्रोसेस सेम होगा. ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले अमीबा में देखते हैं. अमीबा में इंजेशन ऑफ फूड सबसे पहले होगा, एंड दैट इज अकर्ड बाय द फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इटसेल्फ. अमीबा में प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही अपने जब वो देखता है कि उसके आसपास कोई फूड पार्टिकल है, तो अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग से उस फूड पार्टिकल को चारों ओर से घेर लेता है. ओके, एंड घेर कर फाइनली एक दूसरे से टच कर देता है, एंड फाइनली दे फॉर्म फूड वैक्यूल, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंजेशन. ओके, एंड ये जो फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन अमीबा है, दैट इज कॉल्ड द स्यूडोपोडिया. ओके, ये जो फोल्डिंग होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जिसके थ्रू वो फूड के चारों ओर एक सराउंडिंग बनाता है और वो फूड को इनगल्फ कर लेता है बाय मेकिंग फूड वैक्यूल. ओके, it is called ingestion. Next one, after making the food vacuole, the lysosome or the bag of the lysosome comes in contact with the food vacuole and it bursts, due to which the enzymes found inside the lysosome goes inside the food vacuole and started to digest the food, because lysosomes contain certain enzymes. With the help of these enzymes, the complex food inside the food vacuole
is broken down into simpler substances. Now the process comes, that is absorption. अब absorption process आएगा obviously क्योंकि digestion हो चुका. The food now, that is the simpler substances, passes inside the cytoplasm of the cell or of the amoeba. Amoeba तो सिंगल सेल है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म जो है वहाँ पे अपने आप फूड जो है, सिंपलर सबस्टांसेस जो है, किस में मौजूद था? फूड वैक्यूल में. वो पास होकर आ जाएगा कहाँ? साइटोप्लाज्म में. एंड दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. Next process is called assimilation. Assimilation can done at every time. Assimilation हर समय होता रहता है. ये नहीं है कि जब absorption होगा तभी assimilation होगा. Because already साइटोप्लाज्म के अंदर पहले से भी फूड मौजूद है. उसका assimilation कंटिन्यू चलता रहता है और एनर्जी को वो कोई भी एनिमल यूज करता रहता है. अंडरस्टैंड? तो दैट्स वाई एसिमिलेशन इज ऑल्सो देयर. एसिमिलेशन क्या है? ये फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाना और उसे यूज करना. लास्ट प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन. ओके, इजेशन process occur inside the single celled organism or amoeba in like that whenever the food vacuole is not in use now, that food vacuole goes closer to the plasma membrane or cell membrane. ओके, ये जो फूड वैक्यूल है इसमें से जो भी फूड था वो तो एब्जॉर्ब हो गया. अब इसमें जो भी फूड बचा हुआ है आइदर दे आर अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड एंड दैट आर नॉट यूजफुल फॉर द सेल. ओके, सो ये जो फूड वैक्यूल है ये धीरे 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 मूव होकर कहाँ पे जाएगा? सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल पास. ओके, and they touches the cell membrane and finally burst out all the undigested as well as unabsorbed food materials from the body. और अब ये क्या करते हैं? फूड वैक्यूल एकदम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जाके चिपक जाएगा और उसी के साथ बर्स्ट हो जाएगा ये फूड वैक्यूल, और उसमें मौजूद जो भी अनवांटेड मटेरियल्स थे जिसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है हमारे सेल को, अमीबा को, उसे उसने बाहर निकाल दिया. एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन. इन दिस वे न्यूट्रिशन इन अमीबा is exhibited. Thanks for watching the video. And don't forget to like, subscribe and share the video.